Lordship had said advocacy is nothing but communication of thoughts. And what an advocate communicates is the problem, the right of his client who is not there to the court, to the bench. So, his excellence in this communication skill is very important. His Lordship has said, when you look back at your files, you can always find that could be better, little better. So chance of improvement is always there. Art of persuasion. Ultimately, it is this art which is very important in this profession, because we will have to, in every case, persuade the judge or the court to get an order for the client. A sense of fellowship is very important. We need to have a strict code of conduct within ourselves. We should have a good integrity towards the profession, towards the court, towards the client. We should be aware about the rules of the court. We should be disciplined. An advocate should be a good listener, as his Lordship has opined. He should be a good thinker. And the gem of the thought of the Lordship is art of arguing without arguing. Connecting with the definition given by Bruce Lee for the Kung Fu. Thanks, your Lordship has expected the Awadh Bar to improve the innovative skills of the young lawyers. We assure your Lordship that we are trying to do something so that the young professionals can learn new innovative skills. Once again, thanks a lot. जोरदार तालियों के साथ हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं. Now it comes the art of pleading. When a client comes to us with a problem, a young professional need to see whether petition is maintainable, who will be the parties, what is the cause of action, all these things, factual things, what is to be given, and who can be the good speaker on this other than Honorable Justice Jaspreet Singh Sahab, who is a master of the pleading. Honorable Justice Jaspreet Singh Sahab, जोरदार तालियों के साथ. My brother, Justice Pawar, esteemed colleague, Dr. L.P. Mishra, and I have no hesitation to say that all that we know and learn, he has at least twice of that. And I must congratulate each and every member of the bar, especially the President, Mr. Rakesh Kumar Chaudhary, the General Secretary, Mr. Amritnath Tripathi, Senior Vice President, Mr. Rajawat, that they have created this atmosphere for holding these academic dialogues. But since I have been called upon to speak, I would still like to make one suggestion, that we throughout our lives have been reading, listening, but there is one error that we commit. These programs should be more interactive. If we are actually aiming to achieve this issue for the younger generation, I would suggest it is better that have an open session, whatever is the doubts that can be cleared, so that, as Dr. Mishra said, that once we go back, there is something that each of us learn. Now, the art of pleading, which I am actually going to introduce, and just taking what my earlier speakers have said, one aspect of the matter through which all of us must have gone during our school times, at the time we are about to get married, and when we have our children or we are trying to seek for a job, looking for an interview. What happens? The
first and foremost thing is we have to put in a CV, or if we are looking for some kind of a matrimonial proposal, we have to prepare a biodata. That biodata actually is your first introduction to a person. Pleadings is nothing in the court but the first introduction which you make with the court. You will come before the court to argue at a later stage. But the judges, they have the files, they read that and they make up a mind, yes, what does it mean? So therefore, pleadings is very, very essential, and art of advocacy is nothing but the other side of the same coin. Because once you stand up to plead before the court, you might have gone through this practice where your children say, अरे यार तुम तो बहुत काबिल हो, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं अच्छे आते हैं? बच्चा क्या बोलता है? अरे जो टीचर पढ़ाता है समझ में नहीं आता. It's not as if that the teacher is not knowledgeable. The idea is that the teacher is not able to communicate to the child that he is able to understand. So this is the art of advocacy, that all my knowledge will be of no use if I am not able to communicate to the judge. Because that is from where I am going to get my relief. So keeping these two things both in mind simultaneously, we have to prepare the pleadings and then prepare ourselves of how to communicate. So ultimately, what it is coming down is the art of communication, which is important in each and every aspect and relationship, whether it is friendship between husband and wife, student and teacher, judge or a lawyer. If I am able to communicate well, I can get the proper response, and if there is a breakdown in the communication, then the matter, you know what happens, daily. So ultimately, in order to get a good pleading, we must know, as the earlier speakers have already said, what to write and what not to write. How do we get this art, or how do we inculcate this? The idea is to read, know the law, see how the law is changing. For that, we must also have a command over the language. Illustratively, एक वर्ड होता है गुड. हम उसको हजारों तरीके से बोल सकते हैं. खाना कैसा है? गुड. कपड़े कैसे हैं? गुड. मौसम कैसा है? गुड. बट अगर यही कहें कि खाना डिलीशियस है, मौसम प्लेजेंट है, आई एम फीलिंग गुड, तो उसका जो कम्युनिकेशन है, जो उसका इफेक्ट है, वो आपको बहुत ज्यादा आप लिख सकते हैं. This is where, and what the earlier speakers have suggested, this is all what we need to know, कि हमको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है. कम शब्दों में अपनी बात लिख सकें, जिसमें हमारा हाँ कंसीलमेंट ना हो. इसका एक मैं उदाहरण ये दे सकता हूँ. क्लाइंट आता है, वो तो अपनी पूरी बात बता देता है. हो सकता है उसकी पूरी बात में 10% भी कोई काम की बात ना हो. तो लॉयर क्या करता है? अपनी तरफ से उसकी जिरह कर लेता है. 4 सवाल अपनी तरफ से पूछता है. क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इसको हमको रिलीफ दिलानी है, इसके ये फैक्ट्स के तहत हम क्या इनसे सवाल पूछें जिससे हमको सही जवाब मिल सके, तो मैं अपनी बात ढंग से लिख सकूं. अदरवाइज द डिफिकल्टी दैट वी फेस इन कोर्ट इज कि अरे क्लाइंट ने तो ये हमको बताया, क्योंकि हमने उससे पूछने की कोशिश नहीं की. उसने जो बताया वही हमने लिख के दाखिल कर दिया. आइडिया इज नोइंग द लॉ, हाउ इट इज चेंजिंग एंड व्हाट आर द न्यूएंसेस. एक ही पॉइंट पे आपको दोनों तरफ जजमेंट मिल जाएगा. अगर हम केवल अपने जजमेंट से प्लीडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है. मगर अगर हम स्टैट्यूट पे जाके अपनी प्लीडिंग उसको देख के कि स्टैट्यूट क्या कहता है, तब हम कहें, तब हमारी प्लीडिंग रोबस्ट होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी अंडरस्टैंड
what the law is, how the law is changing, and with the changes, how we are able to inculcate and reflect it in our pleadings. Pleading के 3 बहुत essential aspects. Concise, क्योंकि हमारे इंग्लिश के टीचर कार्लाइल मैकफार्लेन लमार्टनियर में एक चीज़ कहते थे, इंग्लिश आप लोग की मदर टंग नहीं है, इसलिए जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी गलती करोगे. तो perhaps that is words of wisdom to say कि जितना कॉन्साइसली आप अपनी बात कह सकते हैं, जिससे हम जो कहना चाह रहे हैं वो पहुंच जाए, दैट इज इनफ. जो एक नया ट्रेंड चालू हो गया ऑफ बल्की प्लीडिंग्स, मे बी दैट इज अ वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम योर क्लाइंट्स, बट इट डजंट हेल्प बिकॉज नाइदर एज अ लॉयर नॉर एज अ जज एवरीबडी डजंट गो थ्रू इट. और अगर आप कोशिश भी करें, हाफ वे यू फील बोर्ड, छोड़ देते. सो व्हाट वी नीड टू डू इज concisely state what our case is. And one thing what I agree with Dr. Mishra कि pleadings वो होनी चाहिए जो इतनी इलास्टिक हो कि whatever be the counter और whatever be the rejoinder, उसके अंदर हम सब समेट लें. जिसको हिंदी में कहावत भी है ना, गागर में सागर. That is the actual art. So this is something we have to develop. और ये कहीं से नहीं आता, ये केवल और केवल वकीलों के साथ रह के अच्छे जो सीनियर काउंसल्स हैं चेंबर में चाहिए, देखिए वो कैसे करते हैं. इट्स अगेन लाइक अ गेम ऑफ चेस. अगर चाहें तो हमको पूरा कहानी मालूम, हमने सब लिख दिया, जैसे कहा काउंटर में सब आ गया. अब अगर हम उसको घुमाना भी चाहते हैं तो हम घुमा नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ ही लिख डाला है. How am I going to get the relief for my client? So there is always a saying that keep some cards up your sleeves so that as and when it is required, use it. Pleadings का एक खास एस्पेक्ट है amendment. Unfortunately, हम उसको केवल प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए यूज करते हैं. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अमेंडमेंट दे. That's not the purpose. This is where in your art of pleading, जहाँ पे आपको लगता है कि अब आदमी फंस रहा, तब आप उसको अमेंड करके एक दूसरे ट्रैक पे ले जा सकते हैं. ये तभी आप कर पाएंगे कि जब प्लीडिंग ड्राफ्ट करते समय आपके सामने पूरी सिचुएशन क्लियर है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. आई हैव टू टेक माई पिटिशन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन एट प्लेस एक्स. हम उसी टाइम अपना लिटिगेशन लॉ के हिसाब से उसको कंसीव कर लें कि हमको कैसे उसको लेके जाना, क्या पॉसिबल डिफेंसेस आ सकते हैं, क्या हमको बताना है. जब वो बताएगा उसका जवाब हम ऐसे दे दें. क्योंकि लॉ ऑफ प्लीडिंग्स में एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑल्टरनेट और इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स का. एक ही टाइम पर आप सब अपनी बात कह सकते हैं, या जब अगर लगे कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं बन रहा, आप अपनी प्लीडिंग्स को ऑल्टरनेट प्लीडिंग में भी लेके अपना मुकदमा चला सकते हैं. तो दीज आर एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू पॉन्डर. प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द हाई कोर्ट्स, वेयर वी कैन लर्न, एंड अल्टीमेटली ये हमको लेके कहाँ जाएगा, लेके वहीं जाएगा. इट इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी आर यूटिलाइजिंग in order to take our case forward. Pleadings thus also involve a very important aspect of cause of action. Cause of action has not been defined anywhere, but it is nothing but the entire gamut of facts जो एक आदमी अलेज करता है और दूसरा आदमी अगर कंट्रोवर्ट करता है. रिलीफ लेने के लिए यही 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हमारी प्लीडिंग हो सकता है 100 पन्ने की हो, फर्क नहीं होगा, पॉइंट केवल निकल के 4 ही 5 आते हैं. अगर ये होगा तो इस तरीके से मुकदमा टर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सो दिस इज अगेन एट द टाइम व्हेन यू आर डिलीवरिंग द प्लीडिंग्स, you must understand and know कि ये कहाँ पे हम मुकदमा लेके जाना चाहते हैं. अल्टीमेटली उन्हीं प्लीडिंग्स के बिहाफ पे इश्यूज फॉर्मुलेट हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट. प्लीडिंग्स के ही बेस पे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो.
उन्हीं क्वेश्चंस के लाइट में आप अपनी अपनी एविडेंस, चाहे वो ओरल हो, सिविल कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, अगर मान लीजिए अगर कोई मुकदमा हमको फाइल करना है जिसपे हम अपने टाइटल डीड पे रिलाई करना है, हम कुछ भी लिख डालेंगे, अगर हम टाइटल डीड को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे हमको मिलेगा। तो इट इज एक्चुअली नॉट दी क्वांटिटी, इट इज द क्वालिटी। एंड देन सर्टेन एस्पेक्ट्स तो हम लोग बहुत कैजुअली वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका इंप्रेशन कोर्ट पे दूसरा होता है। फ्रॉड हो गया साहब, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, कह देना बड़ा आसान, उसको साबित करना दिक्कत। ऐसी अपनी लूज प्लीडिंग्स मत करिए कि हम बातें तो आसमान की करें, मगर जब मौका आता है उसको साबित करने का या उसको कैरी फॉरवर्ड करने का, तो हम कहीं ना कहीं शॉर्ट होते हैं। अगर हम अपनी बात सरलता से ठीक ढंग से कन्वे कर दें, एविडेंस के मौका जब आएगा उस टाइम पे देखेंगे कैसा बनेगा, आगे निकाल लेंगे। मगर अगर हम पहले ही अपने आप को टाइट करके बांध लें तो हम अपने आप को छुड़ाना चाहेंगे तो छूट नहीं पाएगा। तो कॉज ऑफ एक्शन अगर हमारा ठीक से हमने कानूनी तौर से उसको फैक्ट्स पे जामा पहना दिया तो हमको रिलीफ क्यों नहीं मिलेगा? अल्टीमेट गोल हमारा रिलीफ का। रिलीफ हमको तभी मिलेगी जब ये इंग्रेडिएंट्स along with a very very important aspect of art of advocacy हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि हर वकील ऊंची उड़ाई भरे, नो लो थिंकिंग। आई 100% एग्री विद यू। एयरक्राफ्ट भी अगर आप देखें, all of us we must have traveled by air. You need a good pilot, then you need a good engine, and then there are two wings which will take the flight forward. This is exactly what today's topic is all about. The lawyer, he himself is the pilot and the engine of the aircraft. But if I have this, if I don't have the two wings of pleadings and art of advocacy, my flight will not take off. In order for that flight to take off, apart from my own competence, I must have these two aspects along with me. यही हमको ऊपर उड़ान भर के हमको ले जाएगा। और जब हमको कैसे सफलता मिलती है, जब हमारी प्लीडिंग्स अच्छी होती है, कोर्ट का नज़रिया दूसरा होता है। हम अच्छी बहस करते हैं, कोर्ट का नज़रिया दूसरा होता है। डिस्क्रेशन आपके फेवर में फॉलो करता है, रिलीफ आपको फॉलो करती है, और उसके बाद सक्सेस आपको रोक ही नहीं सकती, वो आपके पास ही आनी है। एक मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऑनरेबल मिसेस जस्टिस शोभा दीक्षित थी, कोर्ट नंबर 10 में, एंड शी वॉज बेसिकली अ टफ जज। हम नए नए वकालत में थे। हमारे सीनियर साहब मिस्टर बी के सक्सेना, सिविल का रेंट कंट्रोल का बड़ा काम, उनके वहाँ मैटर लगा था रेंट कंट्रोल का, और हम लोग थे भी टेनेंट की तरफ से। मैटर बहस हो रहा था और सक्सेना साहब बड़ी बहस कर रहे थे कि साहब इसमें स्टे हो जा रही तो इविक्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ से पीएन माथुर साहब, जयदीप साहब के फादर साहब, एंड ही मेड अ स्टेटमेंट कि क्योंकि द मैटर इज गोइंग ऑन, हम इनको इविक्ट नहीं करेंगे। मगर एज यूजुअल, क्योंकि क्लाइंट पीछे बैठा होता है, ज़िलत में आके कहा गया कि नहीं साहब आप ऑर्डर में कर दीजिए, अगर ये कह रहे हैं तो आप ऑर्डर में कर दीजिए। द वर्ड्स ऑफ दैट लेडी जज मिस्टर सक्सेना, if Mr. P.N. Mathur has said that, that is perhaps more than the order of the court. This incident is of the year 1996. 95 में मैं आया, 96 की बात है, और मेरा कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए ये चीज़ें ऐसे दिमाग में भरी कि ये एक वकील की एक स्टैचर है, जिसके शब्दों पे कोर्ट कहता है कि कोर्ट के आदेश से ज़्यादा
This is what the art of advocacy is. This is the integrity which my earlier speakers are speaking of. So, if we take a composite effect of this, pleadings के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो ऑर्डर 6 CPC में पढ़ते रहिए. सवाल यहाँ पे हम लोग बहुत एकेडमिक उस पे नहीं है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बेसिकली क्या चाहते हैं हम अपनी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कैसे अच्छी कर सकें. उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, concise, do not state the law as Dr. Mishra has already stated, but say something which will always keep your matter going. ऐसा ना हो कि कहीं आप अपने आप को बांध लें और कहीं कंसीलमेंट की बॉर्डर लाइन पे ना. जैसे एक पानी का ग्लास आधा भरा भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है, तो हमको इसको कैसे लिखना है कि इट इज़ हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू से, कि कंसीलमेंट नहीं है मगर ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है. मैंने अपने पर्सपेक्टिव से जो लिटिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने बता दी. बाकी तो दूसरी पार्टी का काम है, वो तो बताएगी. एंड अल्टीमेटली द जज हैज़ टू डिसाइड बाय हियरिंग बोथ द साइड्स. सो ही कैन नेवर होल्ड यू गिल्टी कि नहीं साहब आपने ये बताया नहीं. और दिक्कत क्या होती है कि जब हम केवल और केवल क्लाइंट की जो बात आई लिख डालते हैं, कॉपी कट पेस्ट, आजकल कंप्यूटर का शौक हो गया है. इट्स नॉट अ गुड थिंग. हर केस को आप अपने तरीके से डील करिए, उसकी रीडिंग्स बनाइए और उसके बाद उसको आप प्रोसीड करिए. आप खुद पाओगे कि आपके परफॉर्मेंस में, आपके रिजल्ट्स में देयर इज गोइंग टू बी अ मार्क डिफरेंस. एंड वंस अगेन आई थैंक the President of the Bar Association for holding such a program. And दो, क्योंकि प्लीडिंग्स की बात हो रही है, जो हमने बताया ऑर्डर 6 का है, आज हम कहेंगे कि इसमें ऑर्डर 22 का भी है. आज आई एम officiating or substituting on behalf of somebody else. So therefore this is a good example of order 22 also. Thank you so much. जोरदार तालियों के साथ आदरणीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह साहब का धन्यवाद. Lordship has suggested an interactive session. We'll look forward to do that next time. Pleading, just wait for it. Pleading is nothing but a biodata of the case. Rightly said. The pleading and advocacy are the two sides of the same coin. It's nothing but a communication. A lawyer need to know the development of law. He need to have command over the language. He need to formulate the problem for the client. He should frame the pleading as per statute. Rightly said by his lordship. It should be concise. Along with that, it should be a अतिथि माननीय न्यायमूर्ति के.एस. पवार साहब एवं हमारे संरक्षक, हमारे गुरु, हमारे पिता तुल्य डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब, आज आप तीनों महानुभावों ने जो हमें एक मार्गदर्शन दिया है, आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड आर्ट ऑफ प्लीडिंग के बारे में जो हमारा ज्ञानवर्धन किया है, निसंदेह ये एक मील का पत्थर साबित होगा और हम सभी अधिवक्तागण, हमारे सभी साथी, युवा साथी इससे लाभान्वित होंगे और ये फर्क कल से आपको नजर भी आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं. मैं यहाँ सारे जितने भी हमारे अधिवक्तागण उपस्थित हैं, आज आए हैं, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने कार्यक्रम में शरीक हुए और हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि एवं हमारे संरक्षक को सुना. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे सामने हमारे शरद पाठक जी हैं, पूर्व महामंत्री अवध बार एसोसिएशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पूर्व संयुक्त सचिव हैं ऋषभ त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. संजय मिश्रा जी हैं पूर्व संयुक्त सचिव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. समस्त कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे यहाँ बीच में मातृ शक्ति भी उपलब्ध है, बहुत ही अच्छे भाव से वो यहाँ एडवोकेसी के बारे में और प्लीडिंग के बारे में सीखना चाह रही है. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की. मैं पुनः हमारे अध्यक्ष जी, जिनके ही आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हमारे अध्यक्ष जी की
एक प्रयास की वजह से ये संभव हो सका है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपने इसको ऑर्गेनाइज करवाया और माननीय न्यायमूर्तिगणों से आपने समय लिया। मैं आपको बहुत बहुत माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को सफल करवाने के लिए, सफल बनाने के लिए। पुनः हम हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि हमारे संरक्षक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला और अपने परिवार के सदस्यों को आपने मार्गदर्शन दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संचालनकर्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सफल संचालन के लिए। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।